ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور امپورٹ پر پابندی کے عمل نے دالوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ دال 20 سے 40 روپے تک مہنگی ہو گئی ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ریٹیل کی سطح پر دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ لال مسور 300 روپے سے بڑھ کر 340 روپے کلو کی ہو گئی ہے۔ ثابت مسور 260 روپے سے بڑھ کر 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چنے کی دال کی قیمت 220 روپے سے بڑھ کر 240 روپے اور ماش کی دال 340 روپے سے بڑھ کر 360 روپے ہو گئی ہے۔ تاجروں کو بتانا یہ ہے کہ بس ڈالر ابھی جیسے 180 سے 240 تک چلا گیا، آپ کو سارے ملک کو وہ پتہ ہے، تو یہ تو ساری امپورٹ والی دالیں ہیں، امپورٹ ہی ہوتی ہیں آسٹریلیا سے، یوکرین سے، کینیڈا سے، یہاں سے آتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے ان کا ریٹ یہ ہو گیا ہے۔ اور امپورٹ پہ بھی پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو یہی وجوہات بڑے ہول سیلر بتا رہے ہیں۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دالوں سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ گوشت کے برابر چکن لے لو 450 روپے، دال بھی 250-300 روپے ہو گئی ہے، کیا فرق رہ گیا دال اور سبزی میں؟ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے عوامل کو ختم کر کے اشیاء خوردنوش کو سستا کیا جائے۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ہمراہ وسیم افتخار سٹی 21۔ مہنگائی کی ہی بات کریں گے۔ گھی اور تیل بنانے والی کمپنیز کی منمانیاں عروج پر ہیں۔ ڈالر کی قدر میں کمی اور عالمی مارکیٹ میں خوردنی تیل سستا ہونے کے باوجود تیل اور گھی مینوفیکچررز نے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتیں بھی کم ہوئی اور ڈالر بھی سستا ہوا، لیکن تیل اور گھی مینوفیکچررز نے پھر بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ تیل اور گھی بنانے والی 4 نامور کمپنیوں نے ریٹ بڑھا دیے۔ برینڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 565 روپے سے بڑھ کر 580 روپے سے لے کے 600 روپے تک پہنچ گیا، جبکہ 5 لیٹر تیل گھی کا فی کارٹن 2825 سے بڑھ کر 2900 سے 3000 تک پہنچ گیا۔ برانڈ کمپنیوں نے بھی فی لیٹر تیل گھی 20 روپے بڑھا کر 480 سے 500 روپے تک کر دیا۔ نئی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ یہاں پہ لینے کے لیے مشکلات آ رہی ہے، کیا لے بندہ، ہر چیز مہنگی ہے، خالی تیل نہیں، ہر چیز۔ جب فوڈ کا جو مرغی کا دانہ وانا سستا ملے گا تو وہ بھی آگے سستی بیچیں گے۔ جب اتنا مہنگی ان کو بیچاروں کو چیزیں ملیں گی تو وہ ڈیزل سستا کرو، سب سے بڑی بات ہے ڈیزل سستا کرو۔ ڈیزل سستا ہوگا تو باقی سارا کام سیدھے ہو جائیں گے نا آٹومیٹک ہی۔ حکومت کی جانب سے تیل گھی مینوفیکچررز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کے باعث شہریوں کو سستا تیل گھی میسر نہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ وسیم افتخار سٹی 21۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن رؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں گندم کی قیمت میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ ملک میں مصنوعی بحران پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل بازار جو کم ہوئی ہے، پہلے تو 440 میں بھی ٹی سی پی نے لیا ہے، ابھی 337 کے ریٹ آ رہے ہیں اور مزید کم ہوں گے، یہ 280 کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو گندم ہے وہ ہمیں جو 10 لاکھ ٹن شارٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ جس حساب سے منگا رہی ہے گورنمنٹ، وہ ایک اچھا سائن ہے کہ ریزرو ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جی آٹے کا ریٹ اتنا کیوں ہے۔ 76 روپے کی گندم ہے تو آٹا میکسیمم اگر ہم 7 روپے نفع کے ساتھ کوسٹ لگا لیں تو 84 روپے میں فائن آٹا بکنا چاہیے، وہ 92 روپے بک رہا ہے، ایک ناجائز ہے، اس کو کوئی کنٹرول دیکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ غریب کی خوراک ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اور چکی کا آٹا 116 روپے کلو ایک معنی رکھتا ہے، تو اس کو کیوں چیک نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی سوچنا پڑے گا، کمشنر صاحب بھی سوچیں، چیف سیکریٹری صاحب بھی سوچیں، اور فوری اس پہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ اس کو سستا کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کے پرائز کنٹرول، بیورو آف سپلائی اور پورا محکمہ اس کا جال بچھائے اور فلور مل والوں کو بھی چیک کرے، اور جو آگے فروخت ہو رہا ہے اس کو بھی چیک کیا جائے۔ ایک اور بڑے عوامی مسائل کی بات کریں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے، دن ہو یا رات بجلی کی غیر اعلانیہ بندش معمول بن گئی ہے۔ وفاقی حکومت اور نیپرا کی ہدایت کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار علاقوں میں دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ الیکٹرک نے وفاقی حکومت اور نیپرا کی ہدایت کو ہوا میں اڑا دیا۔ رات گئے شہر کے تمام علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، عائشہ منزل اور دیگر علاقے متاثر رہے۔ لیاری، لائنز ایریا، سبزی منڈی، پی آئی بی کالونی، لیاقت آباد میں بھی بجلی غائب رہی۔ اختر کالونی، اعظم بستی، اسکیم 33، رضویہ سوسائٹی، گل بہار، منگو پیر اور پہاڑ گنج کے علاقے تاریکی میں ڈوبے رہے، جبکہ یو پی موڑ، لانڈی، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، شاہ فیصل، میٹرو ویل اور ملیر میں بھی بجلی بند رہی۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ
करार इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि शहर में कहीं भी बिजली की इजाफी बंदिश नहीं की जा रही, बल्कि शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। हबीब खान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शहर का मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। कहाँ है वो 900 मेगावाट का प्लांट, उनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होता? हमारा मुतालबा था कि फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो तमाम जमातें बेनकाब हो जाएंगी। कुल नाजायज टैक्स के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने सियासी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि MQM मर्दमशुमारी के नाम पर चुप रही, अब सियासत कर रही है। तमाम सियासी जमातों का कि इलेक्ट्रिक के साथ गठजोड़ है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारा मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट करवाया जाए। अब जो चीजें खुल रही हैं, जिसका हम तवील अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो तमाम पार्टियां बेनकाब हो जाएंगी और सबका पता चल जाएगा कि किसने के इलेक्ट्रिक माफिया से और अबराज कैपिटल से और आरिफ नकवी से क्या क्या फायदा उठाया है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि एक बैंक करप्ट कंपनी को टैक्स जमा करने का इख्तियार कैसे दिया गया? FBR जब निजाम वाजा नहीं कर सकता तो इस इदारे की हैसियत क्या है? जब तक FBR का टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों से नहीं हटाया जाएगा, बिल नहीं दिए जाएंगे। कल नाजायज टैक्स के खिलाफ ताजिर कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। वो कंपनी कैसे हुकूमत ने उसको ये इख्तियार दे दिया कि वो रिटेलर से, वो ताजिरों से, वो दुकानदारों से फिक्स टैक्स वसूल करेंगे और वो फिक्स टैक्स वसूल करने में जो सहूलतकारी कर रहे हैं उसमें उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। जो ताजिरों का ये फैसला है कि जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, इस पर हम ताजिरों के साथ हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से फरार के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, किसी सूरत भी फरार नहीं होने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात आगे बढ़ा दिए गए, अब मजीद आगे बढ़ाने की बातें नहीं चलेंगी। बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए और शफाफ इंतखाबात के लिए नए बैलेट पेपर्स छापने जरूरी हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। बारिश के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो बारिश के बाद MA जिन्ना रोड पर वाक़े KGA ग्राउंड से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। नौजवान क्रिकेटर्स प्रैक्टिस के लिए परेशानी में मुब्तला हैं। KGA क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें बारिश के बाद ताहाल पानी खड़ा है और कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नौजवान क्रिकेटर्स का कहना है कि बारिश के पानी के बायस प्रैक्टिस का नुकसान हो रहा है, इंतजामिया कुछ करे। खेल है, इसके लिए तो होना चाहिए बिल्कुल। अभी तकरीबन 1.5 से 2 महीना होने वाला है। हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, मैचेस होते हैं PCB के, वो भी नहीं हो पा रहे। सर इतना टैक्स हम लोग दे रहे होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो होनी चाहिए वो, क्योंकि इनको ये करना चाहिए। अब हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फील्ड में भी हम जाना होता है, खेलना होता है, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अभी पेपर चल रहे थे, वैसे ही गैप आ गया था, फिर बारिश हो गई, उसके वजह से और गैप आ गया। बारिश के बाद शहर के अक्सर इलाके कीचड़ और गंदगी की तस्वीर बने हुए हैं और इनमें खेलों के मैदान भी शामिल हैं। अवाम का इंतजामिया से मुतालबा है कि नक्कासी आप के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। और नाजरीन, कराची का इलाका मलीर इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस बेयारो मददगार हो गया है। जिन्ना स्क्वाड से सऊदाबाद तक एक तरफ की रोड अरसे दराज से बंद है, सड़क अपनी असल शनाख्त खो चुकी है। मकीन कहते हैं टूटे हुए रोड पर गंदे पानी और कीचड़ के बायस हमारे बच्चे वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। जगह जगह सीवरेज और बारिश का गंदा पानी, कचरे और गंदगी के ढेर, सड़क पर भी इंतहाई तबाह हाल। ये मनाजर हैं मलीर की मरकजी सड़क के। सऊदाबाद से मलीर जिन्ना स्क्वायर आने वाली 2 किलोमीटर तवील सड़क तकरीबन खत्म हो गई है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सिंगल रोड इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मरकजी शाहराह पर गवर्नमेंट स्कूल, UC ऑफिस, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इमाम बारगाह और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा अहम इमारतें मौजूद हैं, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। अहले इलाका कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 साल से कभी रोड बनता है, कभी टूट जाता है। गंदे पानी और कचरे की वजह से वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। बारिश का पानी, कीचड़, ये दुनिया भर की चीजें, बीमारी, मरे हुए गधे फेंक जाते हैं, मरे हुए गाय फेंक जाते हैं, दुनिया का कचरा होता है। कोई सहूलत नहीं है भाई, हम तो 5 साल से यही देख रहे हैं, ये तो खुला पड़ा हुआ है। 5 साल हो गए इसको तकरीबन। अब ये काम शुरू करा था, पता नहीं क्या रुक गया है, 6 महीने हो गए। हमारी गाड़ी देख लें, 2 साल में ख़राब हो जाती है। इतने खड्डे घूमड़ा, पूरा मलीर को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है, बनाया किसी ने नहीं, सिर्फ उजाड़ा है इन्होंने। शहरी कहते हैं कि इस इलाके का कोई वारिस नहीं, मुसाफिर भी मसाइल से दो चार हैं। मलीर का बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, कचरे के ढेर हैं। ये रोड तो कुछ भी नहीं है, पीछे रोड जाके देखे मस्जिदों के पास गंदा पानी भरा पड़ा है। जिन्ना स्क्वायर के अंदर रोड डला है, सब फट गया रोड। वो इन्होंने रोड ही नहीं डाली, क्रीज डाल के रोड डाल दिया उसके ऊपर। सारे पैसे ये लोग खाए जाते हैं।
इलाका मकीन गिला करते नजर आते हैं कि कहीं सुनवाई नहीं, जाएं तो कहां जाएं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में बरसों पुराने सीवरेज के बोसीदा निज़ाम को दुरुस्त ना किया जा सका। हालिया बारिशों के दौरान बरसात के पानी के साथ सीवरेज का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की बहुतात बढ़ती जा रही है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां भी सर उठा रही हैं। स्कीम 33 पर वाक़े मद्रास चौक और इससे मुल्हिका सड़कों के, जहां कई माह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद है। गंदे पानी से मजबूरन मुसाफिर हजरात भी गुजरने पर मजबूर हैं। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे भी किसी अजियत से कम नहीं। बेताशा मच्छर और मक्खियाँ यहाँ हैं और ना कोई सरकारी इदारा यहाँ कोई आया, और तमाम सोसाइटियों में अंदर पानी जमा है, वो पानी सारा बाहर आ रहा है। फिर मेन प्लस जो है वो गटर लाइन का पानी सारा जो है रोडों पे आया हुआ है। रोड भी ख़राब हो गए हैं, चलने फिरने का रास्ता बंद हो गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो गटर के पानी से जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। कोई मतलब इदारा कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज का पानी सड़कों और गलियों पर खड़ा इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहा है, जिससे मच्छरों की अफजाइश भी तवातुर से हो रही है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि मसाइल के हल के लिए तुंदही से काम करे ताकि आवाम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, जुनैद फिरोज, सिटी 21। मुराद अली शाह से MKM के वफ़द ने ख्वाजा ज़ाहरुल हसन की सरबराही में मुलाकात की है। MKM ने सिंध हुकूमत से इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में MKM के वफ़द ने कराची और हैदराबाद में बारिशों के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की निशानदही की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमने पहले ही 5 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए रखे थे। सिंध काबीना की मंजूरी से पीपल्स बस सर्विस के रूट की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हम तरजीही बुनियादों पर कराची और हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने जा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बारिशों से नुकसानात की भी असेसमेंट जारी है। मुलाकात में MKM के 17 रुकनी वफ़द में जावेद हनीफ, मोहम्मद हुसैन, हमीद ज़फ़र और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और वक़ार मेहदी मुलाकात में मौजूद रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जहांगीर रोड पर सीवरेज और सड़क का तरक्याती काम जारी है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बारिशों के बाद सड़क को नुकसान पहुंचा था, यहाँ काम किसी और ने किया था, मगर तनकीद KMC पर की गई। सड़क के कुछ हिस्से की गलत तामीर जिससे का काम हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों की मुशावरत के बगैर किया गया था। सीवरेज और बारिश का पानी ओवरफ्लो की वजह बना, जिसकी वजह से 800 मीटर तक सड़क टूट फूट का शिकार हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि रोड की कारपेटिंग के साथ साथ सीवरेज की नई लाइन्स भी डाली जा रही हैं ताकि आशूरा के मौके पर अज़ादारों समेत आम अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। डिफेंस थाने की हदूद से 2 मुसल्लह डाकू कंपनी के राइडर से 18 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। राइडर बैंक से रकम लेकर निकला था। SSP साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक राइडर के निकलते ही मुल्जिमान आए और गन पॉइंट पर 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान करीबी A1 स्टेट एजेंसी के करीब देखे गए। करीबी दुकानों से CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। और शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान लोगों को सड़कों पर लाकर अनारकी चाहता है। इमरान डिस्क्वालीफाई और कम अज कम 7 साल सजा का हकदार है। विफाक आज चाहे तो इमरान को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी कहीं भी हो, सिंध के हवाले किया गया तो अच्छी खातिरदारी करेंगे। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले इमरान अनोखा लाडला है और लाडले के दिन पूरे हो चुके। इमरान के पास जेल से बचने और तहरीक इंसाफ के बाद सियासत करने की अब कोई गुंजाइश नहीं। सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि विफाकी हुकूमत अब तक नरमी का मुजाहरा कर रही है। विफाक चाहे तो इन्हें आज गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद सिंध के हवाले किया गया तो अच्छी खिदमत और खातिरदारी करेंगे। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है, लेकिन शायद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने क्या मुझे भी पता नहीं है उनके फैसला क्या हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। शर्जील मेमन बोले कि इमरान को कुछ ऐसे लोगों ने भी फंड्स दिए जो बैरून ममालिक संगीन जराइम में पकड़े जा चुके हैं। इमरान अब लोगों को सड़कों पर लाकर मुल्क में अनारकी चाहते हैं।
एहतजाज करना है तो नौजवानों के साथ अपनी औलाद को भी सड़कों पर लाएं। वो नौजवान बच्चों को, वो मासूम बच्चों को, वो हमारी नौजवान नस्ल को सड़क पे लाना चाहता है ताकि वो नौजवान नस्ल सड़क पे आए और खुदा ना खास्ता किसी क्लैश का सबब बने, फिर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हों। मैं इमरान खान से कहता हूँ अगर आपको इतना ही शौक़ है उस नौजवान नस्ल को सड़कों पे लाने के लिए तो पहले अपने बेटों को ले आओ जो बरतानिया में बैठे हैं, उनको लेकर आओ कि वो आके इस तहरीक को शुरू करें। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि हम सड़कों पर आना नहीं चाहते, मुल्क की अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, ताहम मुल्क में अब फेवरेटिज्म की गुंजाइश नहीं, अब PTI बचेगी तभी हुकूमत बनाएगी। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की सरगर्मियां भी जारी हैं। बल्दिया टाउन की यूनियन कमेटी 9 में 30 साल बाद पीपल्स पार्टी के जालों का नौजवान पैनल बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गया। मजीद एक रिपोर्ट करेंगे इक़्तिदार अनवर। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बल्दिया टाउन की यूनियन कमेटी 9 रांगड़पाड़ा में 30 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नौजवानों पर मुश्तमिल पैनल खड़ा कर दिया। चेयरमैन के उम्मीदवार कहते हैं कि इलाके के मसाइल का हल पहली तरजीह है। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो यहाँ मसले मसाइल हल कर सकती है हमारी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एज ए चेयरमैन जीशान और शहजाद भाई और हमारे कौंसलर कादिर भाई, फरहान भाई यहाँ बैठे हैं, ये हम आवाम से पुरुमीद भी हैं और हम इंशाअल्लाह यकीन दिलाते हैं कि हम ये मसले मसाइल इनकी दहलीज पर हल करेंगे। वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद कादरी का कहना है कि आवाम के पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चॉइस नहीं। तो ये बुनियादी मसले को ख़त्म ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। अब आवाम ने ये सोच लिया है कि इख्तियार लोगों को मुंतखब करें, और अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। तो अब ये जो रोना रोते हैं कराची शहर कराची के अंदर 5 साल हुकूमत करने के बाद कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो अब आवाम भी ये समझ चुकी है कि बाइख्तियार लोगों को मुंतखब करें और इंशाअल्लाह हम UC9 जीत कर इस UC को मॉडल UC बनाएंगे। काउंसलर और चेयरमैन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुंतखब होकर अवामी खिदमत करेंगे और आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हम इस मोहल्ले में रांगड़ पाड़े में करें, यहाँ पे पतंग के सिवा कोई पार्टी अपना झंडा तक नहीं लगा सकता था। आप जिस हल्के में आज करें, यहाँ पे आज हर गली में आप जाएंगे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम नज़र आएगा, और लोग कह रहे हैं हम सिर्फ वोट भी अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। यहाँ के लोग आज हमें कहते हैं कि फैसला ज़मीर का वोट बेनज़ीर का। तकरीबन 30 से 35 साल में MQM जीतती रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा अपने नुमाइंदे यहाँ खड़े किए हुए, और लोगों की बहुत सपोर्ट भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पिछले एतवार में मसले मसाइल हल नहीं हुए, लोगों के बुनियादी मसले मसाइल जो कि तू हैं, तो इस मतलब लोगों ने तब्दीली का सोच लिया है कि शहजाद कादरी भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जीशान भाई को वोट देकर कामयाब कराएंगे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि किमाड़ी में 30 साल तक एक मखसूस जमात को अक्सरियत हासिल थी, ऐसे में पीपल्स पार्टी की आमद को खुश आइंद है। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल होने से कबल अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी के बावजूद तकर्रुर तबादले किए जाने वाले अमल को गैर कानूनी करार देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कलअदम करार देने की हिदायत भी करती है। डायरेक्टर इलेक्शन सिंध परवेज अहमद कलोड़ो ने सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन अब्दुल हफीज चन्ना को खत इरसाल कर दिया है। खत में हिदायत कर दी गई है कि बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद जारी करदा नोटिफिकेशन का रद्दम करार दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज सोहू का तबादला करके स्पेशल सेक्रेटरी सेहत और बिड डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद डॉक्टर हफीज अहमद सयाल का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर थरपारकर तैनात करने को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। कराची में 10 अगस्त के बाद नया स्पेल तेज बारिश बरसाएगा। शहर-ए-कायद के बासियों को महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। DG मेट सरदार सरफराज ने कहा है कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक कराची में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में 6 से 9 अगस्त के दौरान हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। मानसून का नया तेज़ स्पेल अगर हम तेज़ी की बात करें तो 10 अगस्त के बाद मुतवक्के है कराची में भी और पूरे सिंध में दोबारा से तेज़ बारिशों का इम्कान है 10 या 11 अगस्त के बाद, और फिर वो ज़ाहिर 3 या 4 दिन स्पेल चलेगा 14 अगस्त या 15 अगस्त तक। और उससे पहले जो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है एक स्पेल, ये मॉडरेट सा स्पेल है, लाइट टू मॉडरेट, इतनी बहुत हैवी बारिश इसमें नहीं है। चंद एक जगहों पर हो सकती है, ख़ासकर ठट्ठा गदीन और सुजावत डिस्ट्रिक्ट में और पीछे उमरकोट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में।
تو یہ کراچی میں البتہ 6 سے 8 یا 6 سے 9 کے درمیان ہے. لائٹ رین ہے, لائٹ ٹو ماڈریٹ, کسی وقت ماڈریٹ ہو سکتی ہے لیکن جنرلی لائٹ رین ہے. اور باقی جگہوں پر ماڈریٹ اور کسی کسی جگہ پر ہیوی ہے, وہاں پر 5 سے 9 اگست اور کراچی میں 6 سے 9 اگست. تو یہ اسپیل اتنا ہیوی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کا جو اسپیل ہے 10 یا 11 سے جو شروع ہوگا اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. جولائی کے پورے مہینے کی جو ٹوٹل بارش ہے اس کو دیکھا جائے تو کوئی ایک سنگل اسٹیشن کو آپ سنگل آؤٹ کریں تو کراچی کا مسرور بیس کا اسٹیشن ہے, وہاں پر 606 ملی میٹر پورے مہینے کے دوران ہوئی ہے, جو اتفاق سے پورے پاکستان میں کسی بھی دوسرے اسٹیشن پر اتنی بارش جولائی کے مہینے میں نہیں ہوئی. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ پانی میں آلودگی کے باعث وبائی امراض پھوٹنے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے. شہری پانی ابال کر استعمال کرے تاکہ ان وبائی امراض سے تحفظ مل سکے. کراچی ڈاگ یونیورسٹی کے اوجھا کیمپس میں USAID کی جانب سے موبائل لیبارٹری محکمہ صحت سندھ کے حوالے کی گئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ازرا پیچوہو نے کہا کہ اس موبائل لیب سے 4000 ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, جن میں ہیپاٹائٹس, کورونا اور کولیرا سمیت دیگر امراض کی تشخیص شامل ہے. اس موبائل لیب کے سبب افراد کو اندرون سندھ سے شہر نہیں آنا پڑے گا. اور ناظرین, ہر 16ویں منٹ میں ایک پاکستانی ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. ان زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ امراض قابل علاج ہیں. لیاقت نیشنل اسپتال کی سینئر ڈاکٹر کومل کا کہنا ہے کہ یہ خاموشی قاتل ہے جسے بروقت علاج سے روکا جا سکتا ہے. ملک میں ہیپاٹائٹس کا پھیلاؤ بڑھنے لگا. لیاقت نیشنل اسپتال کی سینئر ڈاکٹر نے شہریوں کو خبردار کر دیا. ڈاکٹر کومل کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق یومیہ 96 افراد ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام کا شکار ہو کر زندگی گنوا بیٹھتے ہیں, جسے روکنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہم بات کریں تو ایک سال میں 2 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے بیکاز آف ہیپاٹائٹس. تو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل, کیونکہ یہ آپ کی باڈی سے آپ کی نمکیات کی کمی کر دیتا ہے, آپ کی باڈی سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کومل کا کہنا تھا کہ ہمارا شمار افریقہ کے پسماندہ ممالک کے ساتھ کیا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق ہیپاٹائٹس ای سے 60,000 افراد سالانہ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں. سے زیادہ جو ہیپاٹائٹس ابھی جو کامن ہے وہ بچوں میں ہیں, کیونکہ دیکھیں بڑے لوگ تو پھر بھی اپنی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, ہاتھ دھو سکتے ہیں, لیکن بچے کیا ہے کہیں بھی چیز پڑی ہوئی اٹھا کے کھا لی. اب جتنی مکھیاں آج کل ہمارے ویدر میں ہیں اور اس وقت جتنی مکھیاں ابھی آ رہی ہیں, اس طرح کے جتنے بھی ماسکیٹوز ہیں وہ آپ کے کھانے کو خراب کر رہے ہیں, اور بچوں کو تو آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ اٹھا لیتے ہیں کوئی بھی چیز اور کھا لیتے ہیں. ہیپاٹائٹس کی علامات میں بخار, یرقان, ہاضمے کی خرابی, شدید زرد پیشاب, کمزوری, الٹی, پیٹ میں دائیں جانب درد ہونا, متلی, چکر آنا شامل ہیں. کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں. روپے کی قدر میں مسلسل بہتری. ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے سستا ہو کر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے, یورو 2 روپے, برطانوی پاؤنڈ 5 روپے سستا ہو گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ جولائی میں درآمدی بل 38% کمی اور IMF کے بورڈ سے اگست کے تیسرے ہفتے میں فنڈز کی منظوری کی خبروں پر روپے کی قدر میں بہتری ہو رہی ہے. کی معیشت کے لیے اچھی خبر, ڈالر کی اڑان تھم گئی اور روپیہ مسلسل تگڑا ہونے لگا. ماہرین کا کہنا ہے کہ جولائی میں درآمدی بل 38% کمی اور IMF کے بورڈ سے اگست کے تیسرے ہفتے میں فنڈز کی منظوری کی خبروں پر روپے کی قدر میں بہتری ہو رہی ہے. دیکھیے جی, آج کا دن بھی پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا رہا. کل بھی ڈالر نیچے آیا اور آج بھی ملا جلا کے تقریباً 17-18 روپیہ ڈالر 2 دن میں نیچے آ گیا, جس کی مین وجہ تو اسٹیٹ بینک کی کاوشیں ہیں. جو اسٹیٹ بینک نے بینکس کو چیک کیا اور ایکسچینج کمپنیز کو چیک کیا, اس کی وجہ سے جو بینک کے اندر جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی, جو ان کی سیل پرچیز کا 15 روپے کا فرق تھا, وہ اسٹیٹ بینک کی انٹروین کرنے سے وہ رکا ہے. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 228 روپے 80 پیسے سے گر کر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا. اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک دن میں روپے کی قدر میں 1.17% بہتری ہوئی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز تاریخ میں پہلی بار ایک ہی دن میں روپے کی قدر میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر 4 روز میں 13 روپے 22 پیسے سستا ہونے سے پاکستانی روپے میں بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں میں 1600 ارب روپے کمی ہو چکی ہے. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 226 روپے تک گر گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے سستا ہو کر 226 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 5 روپے کمی سے 272 روپے کا ہو گیا ہے. اماراتی درہم 1 روپے سستا ہو کر 61 روپے اور سعودی ریال 1 روپے 80 پیسے سستا ہو کر 58 روپے 70 پیسے کا ہو گیا ہے. اشرف خان, سٹی 21.
शहर कायद में यौम आज़ादी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में बल्दिया बस्ती के ज़रिए एहतमाम यौम आज़ादी कप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि 75वीं जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने की हिकमत अमली तरतीब दे दी है। क्रिकेट टूर्नामेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मजीद कहा कि इनकी कोशिश है कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम किए जाएं। इफ्तिताही मैच वेस्ट 11 और कमिश्नर 11 के दरमियान खेला गया। जामे कराची के इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से 3 रोज़ा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम में तालिब इल्मों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। शहर कायद को सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन, इस्लामी जमीयत तलबा भी इन एक्शन। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जामिया कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची के शोबा इत्तलात के प्रेसिडेंट बासित नदीम कहते हैं कि शजरकारी मुहिम माहौलियाती तब्दीली लाने में कार आमद साबित होगी। पूरे शहर का बारिशों के बाद हाल हो गया, वही हाल इस जामिया कराची का भी था। जगह जगह पानी खड़ा होना और उसकी नक्काशी जो है वो नामुमकिन हुई भी थी। तो इस्लामी जमीयत तलबा ने इसी मकसद के तहत 3 रोज़ा जो है मुहिम का आगाज़ किया, जिसके अंदर हमने पहले रोज़ के अंदर जो है वो सफाई सुथराई का मामला किया और जामिया के अंदर जगह जगह हमने कचरा समेटा। दूसरा रोज़ हमारा शजरकारी का है। शजरकारी मुहिम में बतौर मेहमान खुसूसी स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम हुसैन ने शिरकत की। ताहम शजरकारी मुहिम मजीद 2 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन काशिफ खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।